Sir, when we talk about emotions, you already told us how important breathing is. Right. So how do you... One sec. Emotions and breathing. Yes, I'm coming to that. Where's the connection here? Okay. You don't breathe with the calculation, right? An emotion, you don't even know how much your heart is beating and how much your breath is short. You can't calculate that. If you're really feeling the true emotion, the breath will take its own course and pace. Why are you calculating that? Don't do that. Don't say ये इतना breathing होना चाहिए तो इतना नहीं होना. Calculate. Emotion is boundless. It has no boundary, right? You can break down, you can cry, you can hold it in. It's up to you what you're actually truthfully feeling at that point of time. It's all about truth at the end of the day. Lies that become truth. That's the bottom line. Lies that become the truth. Yeah. Thank you. With the speech you gave at what it was Right. You mentioned how your mother always supported you with your money, watch movies. I had a similar phase of watching a movie and theater again and again. Right. So until then it was, like, Delhi tickets are so expensive and everything. But since that day my mother was refused to watch because we used to see the show together. That was really Fantastic. I'm ashamed. How was your experience with Hollywood industry? Did you do your first Yeah, it was great actually. See, it pushes me out of my comfort zone. See, there should be a reason for you to do something. It puts you out of your comfort zone. They don't know you. Exactly. And that's great. When it comes to the work ethics, like is it the same what you do in Bollywood, like in the environment, the people? Well, the environment and the people is slightly different. But eventually, acting is acting. When they're doing it on stage, you're doing it in front of another actor. But they're fantastic. Extremely warm, extremely loving, and very, very respectful. Extremely respectful. Feel the emotion. पहले तो खेर साहब ने जब ये क्लासेस शुरू किए थे 10 साल हो गए मेरे हिसाब से, तो पहला लेक्चर मैंने ही दिया था. हाँ, तो मैं आई वाज वेरी एक्साइटेड टू डू दिस. जब मुझे फ़ोन करके कहा कि प्लीज़ आइए क्योंकि हम अनुपम के शो पे कुछ भी हो सकता है, मिले थे वापस, सर बोले क्लास में आना चाहिए आपको, तो मैं क्यों नहीं. ही इज़ अ डियर फ्रेंड, आई लर्न so much from him, and if I could be of any help to the kids, I would be more than happy.
लेकिन फीलिंग ये है, बहुत सिंपल सी फीलिंग है कि कभी कभी क्या होता है कि मैं जब एक्टर था, बहुत सारे एक्टर्स NSD गए थे, FTI गए थे, मैं इतना लेट आया था एक्टिंग की दुनिया में कि मुझे इतनी गाइडेंस नहीं मिली थी, और ऑन द जॉब मुझे बहुत सीखना पड़ा। और गाइडेंस न सिर्फ एक्टिंग की टेक्निक की, लेकिन हाउ टू बी एन एक्टर इस दुनिया में, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं, छोटे छोटे टेक्निक्स होते हैं, लाइफ की फिलॉसफी भी होती है, वो भी सीखने को बहुत बहुत जरूरी होती है। I found it very charming to share it with the children. I'm calling them children, they're all adults. Yeah. Coming back to school, how nostalgic was it for you? I never went to school. I find it actually, जब स्कूल में या कोई क्लास में जब वापस आता हूँ, मुझे नॉस्टैल्जिया के बजाय मुझे ये फीलिंग आती है कि आई फाइंड माई इनोसेंस अगेन। वो फीलिंग आती है क्योंकि हम लोग जब आज एक्टिंग करते हैं बहुत सारे फिल्मों में, बड़े बड़े स्टार कास्ट, बड़े बड़े बजट्स के फिल्म्स, हम लोग अपनी मासूमियत कहीं पे खो देते हैं। तो वो मासूमियत जहां से हम एक्टर बने, वो कायम रखना चाहिए हमारे दिल में, हमारे दिमाग में आगे, क्योंकि उसी मासूमियत ने हमें एक्टर बनाया। Am I using the right word? मासूमियत is right? The correct word, ना? उसी मासूमियत ने हमें एक्टर बनाया। To start off with, we become actors because we were innocent, and we did things with a great amount of innocence. We have to keep that innocence going. तो यहाँ पे आके बच्चों के सामने बातें करके, it rekindles innocence. बोलने का मतलब ये। सर इस तरह के इंस्टीट्यूट आप किस तरह देखते हैं, कितना जरूरी है आजकल के दौर में इस तरह के इंस्टीट्यूट का होना? भाई बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स जो अच्छे खासे टैलेंट के होते हैं, विदाउट इंस्टीट्यूशन, विदाउट एनी नॉलेज, बॉम्बे आ जाते हैं एक्टर बनने को, और दे गेट सम रॉन्ग आइडिया ऑफ द प्लेस, और दिल टूटता है उनका और चले जाते हैं। इंस्टीट्यूट आएंगे। आज की सिनेमा देखिए ना, आज की सिनेमा कमाल की फिल्म बन रही है, एक से एक फिल्म बन रही है। आई थिंक एक्टर शुड बी ट्रेन्ड। अगर आपको ड्राइविंग सीखनी है तो आप ड्राइविंग स्कूल जाएंगे, है ना? अगर आपको कोई भी चीज सीखनी है तो आप स्कूल में जाएंगे। डायरेक्टर जाके पिक्चर में काम थोड़ी करेंगे, थोड़ा बहुत तो सीखना जरूरी है। So I feel there should be lot more institutes. In fact, the government should take it up on a much bigger level, and also whenever it's possible, I am always very happy to help. Keeps me going. Sorry. After achieving this much, also you have told in your interviews कि आप आज भी learn करते हैं हर दिन। यहाँ के आपने क्या give and take, आज क्या सीखा आपने? मैंने वही कहा कि जैसे कि मैं यहाँ आके मैं अपने आप को याद कर रहा हूँ, जब मैंने मेरी पहली पिक्चर की थी, एक मासूमियत की बात कर रहा हूँ। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो बैक टू फाइंड दैट इनोसेंस। मैंने यहाँ के जो डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट के, मैंने उनसे पूछा कि अब तक इन्होंने क्या सीखा है, तो वो लिस्ट बताई। तो वो लिस्ट में कभी कभी मुझे आई एम फीलिंग अशेम्ड दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स आई हैव फॉरगॉटन। सीखा होगा लेकिन 20 साल पहले, और आदमी भूल जाता है, स्कूल में जो सीखते हैं हम भूल जाते हैं। तो इट रिमाइंड्स मी इवन ऑफ अ सिंपल टेक्निक। उसके अलावा एक सिंपल लाइफ की फिलॉसफी है, बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ, एक्टिंग विल कम टू यू नॉर्मली। सर एक ट्रेडिशनल जी पूछिए ना। आपके प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहिए। प्रोजेक्ट अभी हम कर रहे दिलवाले रोहित शेट्टी की फिल्म में, शाहरुख खान, काजोल। बहुत मजा आ रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हर फिल्म में मैं करते रहता हूँ शाहरुख के साथ, तो और डबल इंजॉयमेंट हो जाती है। रोहित तो इज वंडरफुल गाय टू वर्क विद। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग सो मच फन। वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम मेकिंग दिलवाले। फिर हाउसफुल 3 की शुरुआत होगी अगस्त सितंबर में, और एक और फिल्म है जो मैंने अब तक साइन नहीं किया, लेकिन सोच लो कि मैं कर ही रहा हूँ, वो बहुत अच्छी फिल्म है। सर एक दौर था ट्रेडिशनल सिनेमा मेकर यशराज जैसे, करण जौहर जैसे, लेकिन आज दौर बदला है, नए लोग आ गए हैं, रियलिस्टिक सिनेमा का जमाना आ गया, विशाल भारद्वाज जैसे। तो आप इस चीज को कितना देखते हैं? अच्छा फिल्म देखिए, हर तरह की सिनेमा होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि रियलिस्टिक सिनेमा ही आ जाए और एंटरटेनिंग सिनेमा बंद हो जाए। अभी कॉमन मैन को कौन एंटरटेन करेगा भाई? आई फील ऑल काइंड्स ऑफ सिनेमा आर नेसेसरी, फ्रॉम आर्ट सिनेमा टू ऑल्टरनेटिव सिनेमा टू सम काइंड ऑफ रियलिज्म, या अपना गुड ओल्ड एंटरटेनर्स, अमर अकबर एंथनी टाइप के एंटरटेनर्स जरूरी है भाई। हम भी देखते हैं अमर अकबर एंथनी, तब क्या हम क्या अब बड़े हो गए क्या?
We should watch all movies innocently for what they are worth. हर पिक्चर की जगह है और मैं मानता हूँ कि हमारे अवाम को इतनी टेंशन होती है बस एक टू अर्न अ लिविंग संडे पे उसको एक पिक्चर देखनी है फैमिली के साथ. Give him his entertainment. No? Don't become artists. Don't become intellectual for the common man. Give him his. सर आजकल एंडोर्समेंट को लेकर काफी चल रहा है. तो मैं चाहूंगा कि कितनी रिस्पांसिबिलिटी बढ़ती है एक इंसान के ऊपर. Just as a member from the fraternity, just wanted to know कि FIR फाइल हुआ है actors के against जबकि उनकी कोई गलती नहीं, they just endorse it. How right or wrong is it? Just wanted to get your opinion. I feel that you can. Actors are not. I don't think, in my opinion, they have to they have to be responsible when picking a product. But we are talking about a multinational giant of a company. Now, do we go into the lab and do the testing ourselves? I don't think that's possible. And even if we do, are we going to understand it? I mean, we should stop advertising completely. Then is that possible? There's no other way anybody can advertise and say that I went into the lab, I tested that thing for years and years and years and say it's clean. Now you can sign me. I don't think that's right. I mean, the person who manufactures and promises what he's saying should be held responsible. तो क्या फ्यूचर में एक्टर्स जैसे मिस्टर बच्चन ने किया है एक क्लॉज अपने कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर दिया कि व्हाटएवर द प्रोडक्ट इज होना ही है. It should be there. Do you think actors will come up with this clause? See, this is the world has become about clauses. You go onto a page of some website, there's a clause, you just tick box it, read the damn thing. Thank you. Thank you very much, enjoy. Sir,